Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about Nernst equation. Last session में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया था. E naught of cell is the electrode potential at standard condition, that is temperature होना चाहिए 298 Kelvin. Concentration है that must be 1 molar. तो जो E naught था वो स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था. लेकिन अगर हमें सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट एनी डिफरेंट टेम्परेचर और एट एनी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ई सेल. और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरी करेगा, दैट विल बी डिस्कस इन नर्स्ट इक्वेशन. सो नर्स्ट इक्वेशन हमें रिलेशन देती है between electrode potential at any concentration and temperature. Now जो Nernst equation है that is equal to E is equal to E naught, this is E cell, that is equal to E naught cell minus 0.059 n log of Q. Q is reaction quotient. Suppose this is the reaction A plus B, 2 positive, gives rise to B plus A, 2 positive. So इस reaction में this is oxidation and the another one is reduction. So अगर oxidation reaction लिखेंगे, so at anode reaction will be A gives rise to A2 plus 2 electrons, and at cathode reaction will be B2 plus 2 electrons gives rise to B. यहाँ से overall अगर equation लिखते हैं, so that will be A plus B2 plus gives rise to A2 plus B. Then reaction quotient will be concentration of product raised to power their coefficient divided by concentration of reactant raised to power their coefficient. So product है A2 positive, B reactant is A and B 2 positive. तो यहाँ से अगर A भी solid है and B भी solid है, so इनकी concentration will assume 1. So इस तरह से हम reaction quotient को calculate करेंगे. Now ये जो reaction है, this reaction is initially ये जो reaction यहाँ पे given है, this is at temperature 298 Kelvin. Otherwise जो standard equation है, that standard equation is E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT NF log base 10 Q. So यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर टेम्परेचर है that is equal to 298 Kelvin, R gas constant is equal to 8.314 Joule per Kelvin per mole, and Faraday, that is 1 Faraday, that is equal to 96500 Coulomb per mole. 1 Faraday हम already define कर चुके हैं. This is the charge on 1 mole of electrons. So अगर इनकी वैल्यू हम यहाँ प्लेस करते हैं इस इक्वेशन में, so this equation comes out to be E cell is equal to E naught cell minus 2.303, R is 8.314, temperature is 298 divided by N into 96500
log Q. Now this E cell will be equal to E नोट सेल माइनस, यहाँ से ये जितनी भी वैल्यू प्लेस की है अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.059 divided by n log 10 base Q. n is number of electrons transferred. Q हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमने इस एग्जाम्पल से देख लिया है। और n किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सो जो कैथोड और जो एनोड की जो रिएक्शंस है, इन दोनों रिएक्शंस के अंदर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हुआ है। यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन्स था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल आउट हुए हैं, सो n विल बी 2। सो इस तरह से हम नर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ द डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन को किस तरह से हम डेराइव कर सकते हैं, सो उसके लिए डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। दिस इज द थर्मोडाइनमिक इक्वेशन। इसमें डेल G है, दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स टी एनर्जी प्लस R इंटू टी इंटू log E बेस Q। नाउ इस इक्वेशन में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डेल G इज इक्वल टू माइनस NFE होता है एंड डेल्टा G नॉट विल बी माइनस NFE नॉट। सो इफ दिस इज फॉर del G for a cell, then this will be represented like this. So del G cell is equal to del G naught cell plus RT log E base Q. Now यहाँ से अगर वैल्यू प्लेस करते हैं, so this will be equal to NF E cell. This will be NF E node cell plus RT नेचुरल लॉग Q। ना यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, NF से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं माइनस NF से। सो E सेल विल बी E नोट सेल, अगर NF से डिवाइड करेंगे सो दिस इज NF E नोट सेल प्लस RT नेचुरल लॉग Q, दिस विल बी माइनस NF। सो यहाँ से दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी E नोट सेल minus RT divided by NF natural log Q. Now this ln Q natural log Q, that is equal to 2.303 log 10 base Q. So अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, so this equation comes out to be E cell is equal to E node cell minus RT into 2.303 divided by NF multiplied by log 10 base Q. This is E cell is equal to E node cell minus 2.303 RT NF log 10 base Q. सो ये इक्वेशन हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस की है। सो दिस इज नर्स्ट इक्वेशन। अगर यहाँ पे टेम्परेचर हम 298 केल्विन प्लेस करते हैं, गैस कांस्टेंट 8.314 प्लेस करते हैं, 1 फैराडे इज 96500 प्लेस करते हैं, सो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी E cell is equal to E node cell minus 0.059 divided by n log 10 base Q. सो ये दोनों क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है। दिस इज द स्टैंडर्ड वर्जन। और अगर हम टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं, R इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल and 1 Faraday that is equal to 96500 coulomb per mole.
तो यहाँ से ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगी। सो ये दोनों क्या है, नर्स्ट इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन। ना जो नर्स्ट इक्वेशन हमने डिस्कस की है उसी के बेसिस के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which the cell reaction is this one. So this is the cell reaction, that is Pb2 plus cadmium gives rise to Pb plus cadmium 2 plus. So यहाँ से first of all यहाँ से हम at एनोड और at कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। सो एट एनोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ। सो ऑक्सीडेशन यहाँ पे किसका हुआ है, कैडमियम का, और रिडक्शन हुआ है लेड का। सो दिस इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, कैडमियम gives rise to cadmium 2 plus 2 electrons, or at cathode the reaction will be reduction reaction, that is Pb2 plus 2 electrons gives rise to Pb। दोनों reactions को अगर हम add करते हैं then what will be the cell reaction, that will be cadmium plus Pb2 plus gives rise to cadmium 2 plus लेड। नाउ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए हैं दैट वो कितने हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। सो n विल बी 2। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दोनों सेल के अंदर ट्रांसफर हुए हैं, जो कैंसल आउट हुए हैं, वो कितने हैं, 2। तो यहाँ से Q कैलकुलेट करेंगे। सो Q विल बी concentration of product raised to power their coefficient divided by concentration of reactants raised to power their coefficient. So product है cadmium 2 plus lead, this is cadmium and lead 2 plus. now cadmium और जो lead है वो solid है। जो cadmium और lead है उसकी हमने इलेक्ट्रोड डिजाइन की है। सो ये solid है, तो solid की concentration कितनी होगी, हम 1 assume करेंगे। so this is 1 and this is also 1. now Q will be equal to concentration of cadmium 2 plus divided by concentration of Pb 2 plus. Now concentration of cadmium is 0.02 and concentration of Pb, that is lead, that is equal to 0.2. So this comes out to be 10 raised to power minus 1. Now जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होती है, E cell is equal to E naught cell minus टेम्परेचर 298 केल्विन है और वी कैन सी दैट 25 डिग्री सेल्सियस है। सो हम ये नर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log 10 base Q. Now E naught cell is given, that is 0.277 minus 0.059, n हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। सो n is equal to 2 log 10 raised to power minus 1. यहाँ से this one will be equal to E cell, that is equal to 0.277 minus 0.059 to log 10 base। यहाँ से अगर हम ये देखते हैं कि log 10 raised to power a, so इसको कैसे लिखते हैं, a log 10, और log 10 कितना होता है 1, so this comes out to be a. so यहाँ से पावर क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। so power 1 will be minus 1 log 10 is 1, so this is equal to 0.277 minus यहाँ से और minus 1 से, so this will be plus 0.059 divided by 2 log 10 is 1। यहाँ से अगर इसको solve करेंगे so this comes out to be 0.3005 watt. So E cell of the given question or the given reaction is equal to this one. So इस तरह से हम फर्स्ट जो स्टेप फॉलो करेंगे वो क्या करेंगे, कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, वहां से N और Q कैलकुलेट करेंगे, देन नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे और वहां से जो भी पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। Now next question is, what is the cell potential of the electrochemical cell in which the cell reaction is this one?
So cell reaction given है, that is copper 2 positive से copper and zinc से zinc 2 positive. So this is reduction and this is oxidation. So first step is at cathode or anode we will represent the reaction, that is at anode the reaction will be oxidation reaction, that is zinc है that is converted into zinc 2 plus 2 electrons, or at cathode the reaction will be reduction reaction, so that will be copper 2 positive plus 2 electrons gives rise to copper. Now दोनों reactions को अगर add करेंगे then what will be the final reaction? Zinc plus copper 2 positive gives rise to zinc 2 positive plus copper. यहाँ से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, दैट इज 2, यहाँ से दिस वन. सो अगर Q कैलकुलेट करते हैं, सो Q विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट. सो प्रोडक्ट क्या है? जिंक 2 पॉजिटिव, कोफिशिएंट 1 है इसका. नाउ कॉपर डिवाइडेड बाय जिंक एंड कॉपर 2 पॉजिटिव. जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड बनी हुई है, सो दिस वन विल बी 1. Solid electrodes हैं, so this one will be concentration of copper and zinc will be 1. Now Q will be equal to zinc 2 positive divided by copper 2 positive. यहाँ से अगर इनकी वैल्यू प्लेस करें, so zinc this will be zinc 2 positive और copper 2 positive की concentration क्या दे रखी है? 10 times of zinc 2 positive. So this will be 10 times of zinc 2 positive. यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, दिस कम्स आउट टू बी 0.1 और वी कैन से दैट 10 raised to power -1. नाउ नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. सो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 298 केल्विन है. सो टेम्परेचर हम एज इट इज यही रखेंगे. सो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log 10 base Q. यहाँ पे अगर वैल्यू प्लेस करें, ई नोट सेल कितना गिवन है? 1.10. दिस इज 0.059 n is 2 log दिस विल बी 10 raised to power -1. तो इसको सॉल्व करेंगे. 1.10 माइनस 0.059 टू 10 raised to power -1 है, सो -1 आगे हो जाएगा एंड दैट विल बी log 10. यहाँ से अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सो -1 और दिस माइनस साइन दिस विल बिकम प्लस 0.059 डिवाइड बाई 2 log 10 इज 1. यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 1.1295 वोल्ट. सो दिस विल बी द सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन सेल रिएक्शन. Now next concept is calculation of equilibrium constant. So equilibrium constant को हम किस तरह से calculate करेंगे? So nernst equation क्या थी? E is equal to E naught cell minus 0.059 divided by n log Q. So इस equation में हम क्या देखते हैं कि at equilibrium, ये nernst equation हमने temperature 298 Kelvin पे ली है. Now at equilibrium what happens is E cell that comes out to be 0. E cell है वो 0 के इक्वल हो जाता है, क्योंकि जो del G cell है that is 0 and del G cell is equal to minus NF E cell. So del G cell अगर 0 है, N 0 हो नहीं सकता, F है 96500 होता है, so E cell will be automatically 0. So this will be 0 and Q will be reaction quotient that will be equal to equilibrium constant. So अगर ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे, so what will be the equilibrium constant? So 0 is equal to E naught cell minus 0.059 n log Q. Now E naught cell is equal to 0.059. यहाँ पे log Q नहीं प्लेस करेंगे, इसको हम log K लिखेंगे.
So this is log K divided by N log K. So one equation is this. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और उससे हमें E नोट सेल कैलकुलेट करना है, सो हम यहाँ से ये इक्वेशन यूज करेंगे. अनदर वन इज अगर log K दैट इज इक्वल टू, अगर n को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, सो दिस विल बी n E नोट सेल डिवाइड बाय 0.059. K कैलकुलेट करना है और अगर E नोट सेल गिवन है, दैट विल बी कैलकुलेटेड एज K इज इक्वल टू, दिस इज log 10 बेस K था ना, सो यहाँ से 10 रेज़ टू पावर n E नोट 0.059. सो एंटी लोग यहाँ से लेंगे और इस तरह से हम K की जो वैल्यू है दैट विल बी कैलकुलेटेड. सो इस तरह से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और E नोट सेल कैलकुलेट करना है, सो दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड. और अगर E नोट सेल गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, सो दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड. Now the equilibrium constant of the cell reaction is 4 into 10 raised to power 16. E नोट सेल हमें कैलकुलेट करना है. सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और E नोट सेल कैलकुलेट करना है. सो द equation that will be used is E naught cell is equal to 0.059 divided by n log K. Now अगर E naught cell है, that will be equal to 0.059 divided by n और log K कितना है 4 into 10 raised to power 16. So this is n. n यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिखेंगे. सो एट एनोड द रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो दैट इज कॉपर है, कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. एट कैथोड द रिएक्शन विल बी रिडक्शन रिएक्शन, सिल्वर प्लस है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर. नाउ दोनों इक्वेशन से अगर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, सो जो कैथोड की इक्वेशन है उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो फाइनल इक्वेशन इज कॉपर प्लस 2 सिल्वर प्लस गिव्स राइज टू कॉपर 2 प्लस सिल्वर. सो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि n इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि जो n है जो कैंसिल आउट हुआ है दोनों में बैलेंस होके दैट इज 2. सो दिस विल बी इक्वल टू E नोट 0.059, n की वैल्यू प्लेस करते हैं 2 log A इंटू B, log A इंटू B. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log A प्लस log B. सो दिस विल बी इक्वल टू log 4 प्लस log 10 raised to power 16. यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें, सो E नोट इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई 2. log 4 को किस तरह से लिख सकते हैं, log 2 raised to power 2 प्लस यहाँ से 16 आगे आ जाएगा, दैट विल बी log 10. 0.059 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 प्लस 10 log 10 is 1. So this will be 0.059 divided by 2. 2 into log 10 is 0.3010 plus 10. So यहाँ से अगर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, so this comes out to be सॉरी यहाँ से पावर कितनी थी 16 थी, so 16 आगे आएगा. So this will be 16 log 10 और यहाँ पे ये 16 होगा. तो इस तरह से जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर कितनी आएगी 0.4897 वोल्ट. सो दिस विल बी द E नोट फॉर द गिवन रिएक्शन. सो डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड del G नॉट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. दिस इज द रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए E नोट गिवन है. इस रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कैथोड एनोड की रिएक्शन नोट डाउन कर लेते हैं. सो एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, निकल है दैट इज कन्वर्टेड इनटू निकल 2 प्लस
2 electrons. Or at cathode, the reaction will be silver plus electron gives rise to silver. दोनों रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है, सो कैथोड जो रिएक्शन है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2, so the cancelling or the transfer electrons are 2, so n will be 2, and the final reaction is nickel plus silver plus gives rise to nickel 2 plus 2 silver, yeah, 2 silver plus. So this is the final cell reaction. Now यहाँ से E नोट सेल गिवन है, सो डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करना है. डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट. सो एन इज 2, एफ इज 96500, ई नोट इज 1.05. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 202650 जूल पर मोल. किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे, सो डिवाइडेड बाय 1000. So this will be 202.650 kilojoule per mole. So this will be the value of del G naught. Now another one is equilibrium constant की value calculate करनी है. That is K is equal to 10 raised to power n E naught divided by 0.059. So 10 raised to power n is 2, E naught is 1.05 divided by 0.059. So this is equal to 10 raised to power 2.1 divided by 0.059 and 10 raised to power 35.59. So अगर यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, so this comes out to be 3.89 into 10 raised to power 35. So this will be the equilibrium constant. Now moving to the next question. एक रिएक्शन गिवन है, गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन गिवन है और उस रिएक्शन के अंदर ई नोट सेल गिवन है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड. नाउ कैथोड एनोड की रिएक्शन लिखेंगे. सो एट कैथोड reduction will occur, that is copper 2 positive plus 2 electrons gives rise to copper. Or at anode oxidation will occur, that is zinc is converted into zinc 2 positive plus 2 electrons. यहाँ से cancel out करेंगे 2 electrons, so the final equation will be copper 2 positive plus zinc gives rise to zinc 2 positive plus copper. So n will be 2. Now equilibrium constant K, that will be equal to 10 raised to power n E naught cell divided by 0.059. So n is equal to 2, E naught cell is 1.10, 0.059. Now इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, so 10 raised to power 2.20 divided by 0.059, this comes out to be 10 raised to power 39.2857. So this will be equal to 1.80 into 10 raised to power 39. So this will be the value of K, that is equilibrium constant. So इस तरह से अगर equilibrium constant कैलकुलेट करना है, E नोट सेल गिवन है, so this will be the equation. और अगर E नोट सेल कैलकुलेट करना है और equilibrium constant है that is given, तो this will be the equation.